Hello, hi students. Today we discuss about refraction by Huygens principle. Refraction is a property of light. According to this, if light propagates from one medium to another medium, suppose rarer medium to denser medium or denser medium to rarer medium. When light enter from rarer medium to denser medium, then at separation level, at this point, at the separation point, it divert from its path. This phenomena is called as refraction of light, and the cause of refraction is speed of the light is different in different type of medium. If the medium is rarer, then speed is high, and if the medium is denser, then speed becomes low comparison of rarer medium, and the speed of light is maximum in vacuum. Its value is given by 3 into 10 to the power 8 meter per second. This is laws of refraction and property of light. You can say laws of refraction, diversion of light from its path. Diversion of light from its path. Suppose light is coming in this direction, but at this separation point it divert from its path. ये इधर से ये डाइवर्ट हो गई है. Similarly, light is incident at this point in this direction, but at separation level it divert from its path. Now this one is angle of incidence, this one is normal at this point, and this one is angle of refraction. Similarly, light is coming at this point and going at this point in this direction at separation level. Now R is your angle of refraction, angle made by ray from normal. Now angle between incidence ray and normal is angle of incidence. Angle between refracted rays and normal is called as angle of diffraction. Now this is property of light, and Huygens assume light is transfer in form of longitudinal wave through the medium ether. Now according to it, when light propagate, then wave front becomes, and the direction between the propagation of light and wave front, this one रिपल्स की फॉर्म में ये ऐसे आगे बढ़ता है. यू एंगल बिकम्स 90 डिग्री. इसको हमने पिछली क्लास में, पिछले जो अपना लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है. अब हमें इस हाइगेंस के प्रिंसिपल, जिसके अकॉर्डिंग लाइट लॉन्गिट्यूडिनल वेव की फॉर्म में प्रोपगेट हो रही है और उसमें वेव फ्रंट बन रहे हैं, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है, और वेव फ्रंट जो है उसका ईच पॉइंट बिहेव एज ए न्यू सोर्स ऑफ लाइट. यानी कि ये जो वेव फ्रंट है इसके जितने भी पॉइंट हैं ये सारे के सारे पॉइंट न्यू सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, और न्यू सोर्स की तरह बिहेव करेंगे तो ये लाइट का इमिशन करेंगे. हर डायरेक्शन में, पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट इमिट होगी, और इनसे जो इमिशन होगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स. सिमिलरली यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स ये निकलेंगी. तो ये हमने हाइगेंस प्रिंसिपल में पहले डिस्कस कर लिया था, जिसको मैं यहां पे रिवाइज करवा रहा हूं. अब हमारा जो टॉपिक यहां पे है उसको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं. हमारा टॉपिक है कि जो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है, यानी कि जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन जिसकी लॉज हैं, दो लॉज हैं रिफ्रैक्शन के. एक स्नेल लॉ जिसको हम बोलते हैं, आपने 10th क्लास में स्टडी किया था, स्नेल लॉ, जिसके अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
second medium with respect to first medium is given sin I by sin r. This is laws of refraction, rule of refraction. Rule of refraction, mu to 1 is equal to sin I by sin r. Here I is angle of incidence and r is your angle of refraction. Mu to 1, mu is your refractive index. Then mu to 1 is refractive index of second medium with respect to first medium. Now our topic is what is refractive index. Refractive index is comparison of light. Refractive index is given mu is equal to c by v. Mu is equal to c by v. Speed of light in vacuum upon speed of light in medium is refractive index of that medium. I repeat, refractive index of a material is given speed of light in vacuum upon speed of light in that medium. Now in first medium the speed of light is given v1, and in second medium the speed of light is given by v2. Now refractive index of first medium is given by mu1 is equal to c by v1, because in this medium the speed of light is v1. Now refractive index of second medium, according to definition of refractive index of second medium, mu2 is equal to c by v2. C is your speed of light in vacuum and v2 is your speed of light in second medium. Now अब हम इसको प्रूफ करेंगे mu to 1 is equal to sin I by sin r. सपोज मैंने यहाँ पे बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज गिवन बाय mu1, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम इज गिवन बाय v1, एंड फर्स्ट मीडियम इज rarer and second medium is denser. Now refractive index of second medium is given by mu2 and speed of light in second medium is given by v2. तो हमें इसको प्रूफ करना है mu2 1 is equal to sin I by sin r. अगर हम इसको प्रूफ कर देते हैं तो रिफ्रैक्शन रूल प्रूफ हो जाएगा, और इसको हमें प्रूफ करना है हाइगेन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग. यानी कि हमें ये कंसिडर करना है कि लाइट का जो प्रोपगेशन हो रहा है वो हाइगेन्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, वेव फ्रंट की फॉर्म में हो रहा है. लाइट प्रोपगेट कर रही है, वेव फ्रंट बनते जा रहे हैं, और वेव फ्रंट का जो कंसेप्ट है कि वेव फ्रंट का हर पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है और उससे सेकेंडरी वेवलेट्स जो हैं वो इमिट्स हो रही हैं. इस बात को हमें कंसिडर करना है, और इसको कंसिडर करते हुए हमें रिफ्रैक्शन के रूल्स को फुलफिल करना है. रिफ्रैक्शन का जो रूल है mu2 1 इज इक्वल टू sin I बाई sin r. तो पहले हमें क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना है कि हमारा क्वेश्चन क्या है. तो मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं. क्वेश्चन हमारा है कि हाइगेन्स की प्रिंसिपल जो है, हाइगेन्स प्रिंसिपल को कंसीडर करते हुए हमें रिफ्रैक्शन रूल को प्रूफ करना है. अब रिफ्रैक्शन रूल क्या है? रिफ्रैक्शन रूल ये है कि अगर लाइट यहां से यहां आती है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपगेट करती है, यहां से यहां आती है, रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम mu2 1 इज इक्वल टू sin I बाई sin r. मैंने आपको बता दिया I इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड R इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अगर इस बात को प्रूफ कर देता है कौन? हाइगेन्स प्रिंसिपल. तो हम ये कहेंगे कि हाइगेन्स के प्रिंसिपल को के अकॉर्डिंग, हाइगेन्स के अकॉर्डिंग हम ये वेव का प्रोपगेशन मानेंगे. लॉन्गिट्यूडिनल वेव की फॉर्म में वेव फ्रंट के थ्रू इसका ट्रांसमिशन हो रहा है, तो वो प्रूफ हो जाएगा. तो अब हम यहाँ पे हाइगेन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल को कंसीडर करते हुए और रिफ्रैक्शन के रूल को प्रूफ करेंगे, जो कि mu2 1 इज इक्वल टू sin I बाई sin r है. और दूसरा रूल सीधा सा है कि एंगल इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई ऑन सेम प्लेन. वो तो सीधा सा अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा. हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, यहाँ पे फोकस करते हैं mu2 1 इज इक्वल टू sin I बाई sin r. ये हमें प्रूफ करना है, और प्रिंसिपल किसका लेना है? हाइगेन्स का लेना है, जिसके अकॉर्डिंग लाइट का प्रोपगेशन वेव फ्रंट की फॉर्म में हो रहा है, और वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक न्यू सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, और
उससे सेकेंडरी वेवलेट्स हर एक डायरेक्शन में निकल रही हैं और फिर हम उनका एक लॉकस ले लेंगे और उन टेंजेंट ले लेंगे तो वो सेकेंडरी आपका वेव फ्रंट बन जाएगा। तो देखिए, और मैंने आपको बताया था कि इसके अकॉर्डिंग वेव फ्रंट की शेप कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करती है कि आपने किस टाइप का सोर्स लिया है। जैसे आपने पॉइंट सोर्स लिया था तो जो वेव फ्रंट बन रहा था वो स्फेरिकल बन रहा था। अगर हम एक रोड टाइप लेते हैं यानी कि लीनियर हम सोर्स लेते हैं तो उससे जो वेव फ्रंट बनेगा वो सिलेंड्रिकल बनेगा। फिर मैंने प्रिज्म से बना के दिखाया था आपको कि हम प्रिज्म लेते हैं तो उससे इंक्लाइंड ऐसे वेव फ्रंट बनता है, मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था। तो हमने यहाँ पे एक प्रिज्म से एक वेव फ्रंट बनाया है, वो इस टाइप से एक इंक्लाइंड लाइन बनी है। ये इंक्लाइंड लाइन एक वेव फ्रंट है जिसको मैं कह रहा हूं इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अब अगर मैं इसको वेव फ्रंट कंसिडर करता हूं, AB को इंसिडेंट वेव फ्रंट, तो इसके जितने भी पॉइंट होंगे, जैसे ये वाला पॉइंट, बीच में कोई पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट, कोई भी पॉइंट है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक न्यू सोर्स की तरह। यानी कि B पॉइंट है वो भी सोर्स है, यहाँ पे भी कोई सोर्स है, यहाँ पे भी कोई सोर्स है। देखिए रिफ्लेक्शन वाली जो टॉपिक था उसमें हमने, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, लाइट इसके अंदर इसके अंदर ट्रांसमिट नहीं हो रही थी तो वो तो बाउंस बैक हो गई थी। लेकिन यहाँ पे जो लाइट आएगी वो तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम है, क्योंकि रिफ्रैक्शन जो होता है वो किस मीडियम से होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम से होता है। जैसे ग्लास से होता है, जैसे वाटर से होता है। तो जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे अपने आंख में जो चश्मा लगाते हो आप लोग, उसमें जो लेंस होता है उससे होता है। तो जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है उससे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे जो मीडियम सेकंड है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो लाइट यहाँ पर पहले वाले जो टॉपिक था जिसमें हम रिफ्लेक्शन को प्रूफ कर रहे थे, उसमें लाइट यहाँ से सीधी बाउंस बैक हो रही थी, लेकिन इसमें बाउंस बैक नहीं होगी, इसमें दूसरे मीडियम के अंदर एंटर कर जाएगी। अब एंटर करेगी तो लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, स्पीड या तो उसकी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, दैट इज डिपेंड अपॉन इन विच मीडियम लाइट इज एंटर। जैसे यहाँ पे रेयर से डेंसर में ये एंटर कर रही है तो इसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी, और स्पीड स्लो होते ही एंगल ऑफ आर विल बी लेस देन फ्रॉम एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए यहाँ पे ये भी सोर्स है, ये भी सोर्स है। अब यहाँ का जो डिस्टरबेंस है, ये सोर्स बन गया, ये नया सोर्स है, ये भी नया सोर्स है। इस सोर्स से भी लाइट का इमिशन होगा, इस सोर्स से भी लाइट का इमिशन होगा। अब देखिए इस सोर्स से लाइट, यहां से इमिशन जो हो रहा है, ये नया सोर्स है, इससे लाइट कहां तक पहुंचती है, सी तक पहुंचती है, और सी तक पहुंचने में उसका ट्रैवलिंग टाइम जो है वो कितना है, टी है। अब टी ट्रैवलिंग टाइम है और स्पीड यहां पे मैंने कितनी कंसीडर की है इस मीडियम में, v1। तो यहां इसका डिस्टरबेंस यहां तक पहुंच रहा है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v1 t। क्यों, क्योंकि v1 इसकी स्पीड है और t इसका ट्रैवलिंग टाइम है। तो B से जो जनरेट हुआ डिस्टरबेंस, क्योंकि ये एक नया सोर्स है तो यहाँ पे एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगा, और ये डिस्टरबेंस B से C पर पहुंचा कितने टाइम में, T टाइम में। तो कितनी ट्रैवलिंग डिस्टेंस हुई, v1t। तो v1t यहां पर मैंने ले लिया है C पर। सिमिलरली A पर भी एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ, क्यों, क्योंकि A भी एक क्या है, सोर्स है। तो यहां पर भी एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ। ये डिस्टरबेंस बाउंस बैक नहीं होगा, क्योंकि ये जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। तो ये जो डिस्टरबेंस है यहां से जो जनरेट होगा वो इसके अंदर जाएगा, ऐसे इसके अंदर जाएगा। तो इसको भी हमें कितने टाइम तक ट्रेवल करवाना है, टी टाइम तक ट्रेवल करवाना है, क्योंकि बी वाले को हमें सेम फेज वाले पॉइंट लेने हैं। सेम फेज वाले पॉइंट जो हैं उनको जब हम एडजॉइन करते हैं तो फिर दूसरा वेव फ्रंट बन जाता है। तो सेम फेज वाले के लिए मैंने यहां से जो इसका जो डिस्टरबेंस था वो टी टाइम तक ट्रेवल किया। तो यहां से चलने वाला भी कितने टाइम तक ट्रेवल करना चाहिए, टी टाइम तक ट्रेवल करना चाहिए, जिससे कि सेम फेज के पॉइंट आ जाएं, और सेम फेज वाले पॉइंटों को फिर हम एडजॉइन कर देंगे तो एक नया वेव फ्रंट हमें मिल जाएगा। तो देखिए यहां से एक डिस्टरबेंस टी टाइम तक ट्रेवल करवाना है, और यहां से भी हमें, क्योंकि देखो ए बी जो है वो एक वेव फ्रंट है, बी सोर्स है, ए बी एक सोर्स है। बी से चलने वाला सोर्स कितने टाइम तक चलाना चाहिए, टी टाइम, हमें चलाना है टी तक। तो इसको भी कितने टाइम तक चलाएंगे हम, टी तक। इन दोनों को टी टाइम तक चलाएंगे तो जो पॉइंट बनेंगे उन पॉइंटों को हम एडजॉइन कर देंगे तो वो एक दूसरा वेव फ्रंट बन जाएगा, क्योंकि ये टी टाइम तक इधर, ये टी टाइम तक इधर।
ये दोनों सेम फेज वाले पॉइंट होंगे और सेम फेज वाले पॉइंटों को हम एडजॉइन करते हैं तो एक दूसरा वेव फ्रंट बन जाता है जिसको हम सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलते हैं। तो अब देखिए यहां से हम चले, यहां से इस साइड में चल रहे हैं क्योंकि लाइट का प्रोपगेशन ये तो इधर होगा। तो कितना इसने डिस्टेंस कवर किया v1t। इस सोर्स से जो वेवलेट्स निकल रही हैं उनको भी हमें कितने टाइम तक ट्रेवल करवाना है, t टाइम तक ट्रेवल करवाना है। तो कितनी ट्रेवलिंग डिस्टेंस होगी, v2t होगी, v2t और ये v1t, क्योंकि यहाँ पे स्पीड v1 है और यहाँ पे स्पीड v2 है। तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा है तो ट्रेवलिंग डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। ये डेंसर मीडियम है तो स्पीड इसकी मैं कंसिडर कर रहा हूं कि v2 इज लेस देन v1, देन डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय दिस सोर्स, बाय द सोर्स A कंपैरिजन ऑफ सोर्स B विल बी लेस। तो ये छोटी डिस्टेंस होगी। अब v2t में यहां तक पहुंचा, ये इसका हेमिस्फीयर ले लिया, यहां वाला यहां पहुंचा, दोनों को मैंने एडजॉइन कर दिया। तो CD जो है वो हमारे पास रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बन गया। वी कैन से दैट CD इज योर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। देखिए AB इज योर इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड CD इज योर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं, प्रूफ हम स्नेल लॉ को प्रूफ करना चाह रहे हैं, यानी कि हम रिफ्रैक्शन रूल को प्रूफ करना चाह रहे हैं। रिफ्रैक्शन का जो रूल है उसमें है स्नेल लॉ, दैट इज μ2 1 इक्वल टू sin I by sin r, वेयर I इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड r इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसको हमें प्रूफ करना है, किसके अकॉर्डिंग करना है, हाइगेन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। हाइगेन्स के अकॉर्डिंग हम लाइट का प्रोपगेशन कंसिडर करेंगे और उसको कंसिडर करते हुए फिर हम स्नेल लॉ यानी कि रिफ्रैक्शन रूल को प्रूफ करेंगे। तो देखिए ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये हमारा कौन सा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब हम एंगल लेते हैं। देखिए सबसे पहले लाइट यहां पे इंसिडेंस होती है। आपको मैंने बताया था कि वेव फ्रंट जो होता है उस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर उसका प्रोपगेशन होता है। जो प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है दैट इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। तो ये हमारा वेव फ्रंट है, ये यहाँ पे लाइट इंसिडेंस हो रही है। तो इन दोनों में एंगल कितना होगा, यहां से लेके यहां तक का एंगल जो होगा, इसको मैं ये बड़ा एंगल बना देता हूं, ये 90 डिग्री होगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये देखिए ऐसे ऐसे वेव फ्रंट बनेंगे और ये डायरेक्शन होगी। तो ये यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। ये कौन बता रहा है, ये हाइगेन्स बता रहा है। तो यहां से ये एंगल इंसिडेंस हो रहा है, सॉरी रे इंसिडेंस हो रही है। AB जो है वो आपका एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है। तो यहां से लेके यहां तक का कितना एंगल हो गया है, 90 डिग्री हो गया है। अब देखिए ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंस रे है, तो ये एंगल कितना हो गया है, एंगल ऑफ I। अब इंसिडेंस रे और वेव फ्रंट इनमें एंगल कितना होता है, 90। तो ये रिमेनिंग कितना हो गया, 90 माइनस I, यानी ये वाला एंगल 90 माइनस I हो गया। ये देखिए ये प्लेन है, ये नॉर्मल है, ये यहां से लेके यहां तक कितना हुआ, ये वाला 90, जिसमें से इसको मैं कितना बता रहा हूं, 90 माइनस I, तो ये रिमेनिंग कितना हुआ, I। तो ये एंगल ऑफ I आ गया है, यानी कि इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है वो इस प्लेन से कितना एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ I। अब यहां पे देखिए, देखिए यहां पे लाइट ये इंसिडेंस हो रही है, ये नॉर्मल बनाया मैंने यहां पे, ये यहां पे रिफ्रैक्टेड डायरेक्शन है। तो ये हो गया एंगल ऑफ R। कहां से बनाया मैंने इसको, नॉर्मल से। ये नॉर्मल बना देता हूं मैं यहां पे, जैसे यहां पे नॉर्मल बनाया था मैंने। तो ये नॉर्मल से, और ये इसकी रिफ्रैक्शन की जो डायरेक्शन है, रिफ्रैक्टेड रेज की डायरेक्शन है ये वाली, ये नॉर्मल है। तो ये एंगल ऑफ हो गया है, ये एंगल ऑफ R। अब देखिए ये एक सेकेंडरी वेव फ्रंट बना है CD, और ये जो डायरेक्शन है CE, ये वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन है। CE वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन है और CD यहाँ पे क्या है, वेव फ्रंट है। तो इन दोनों में कितना एंगल होगा, देखिए ये और ये, इन दोनों में होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये वेव फ्रंट है CD और ये वेव का प्रोपगेशन डायरेक्शन है। तो इन दोनों में 90 डिग्री एंगल होगा, जबकि ये रिफ्रैक्शन की डायरेक्शन है और ये नॉर्मल है, तो ये R हो गया। तो ये रिमेनिंग एंगल हो गया आपका 90 माइनस R। अब देखो ये प्लेन है और ये नॉर्मल है, इन दोनों में कितना एंगल होगा, इनमें भी 90 होगा, जिसमें से ये वाला कितना हो गया, 90 माइनस R। तो ये रिमेनिंग कितना हो गया, R हो गया है। तो ये जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है ये आपका इस प्लेन से R एंगल बनाएगा,
ये वाला, और इंसिडेंस जो है वो यहाँ से कितना, इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो इस प्लेन से कितना एंगल बनाएगा, आइए अब हम इसको प्रूफ करने के लिए देखिए क्या करते हैं। ये हमारे पास दो ट्राइंगल आ गए हैं, एक ए बी सी और दूसरा हम ले सकते हैं ए डी सी। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। ये मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम इज गिवन बाय v1, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम इज गिवन बाय v2, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, और definition of refractive index is mu is equal to c by v, where c is speed of light and v is your speed of light in material, and this one is speed of light in vacuum, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. अब हम दो ट्राइंगल लेते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं हम? एक तो ले रहे हैं हम यहाँ पे ए बी सी, और दूसरा जो ट्राइंगल ले रहे हैं हम वो ले रहे हैं आपका ए डी सी। देखिए ए बी सी जो है यहाँ पे ए बी सी, और सेकंड जो है वो ए सी और डी। तो देखिए ये मैं ले रहा हूं ट्राइंगल ए बी सी। इसमें देखिए ये वाला 90 डिग्री है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसको, क्योंकि ये यहाँ पे आपका वेव फ्रंट है और ये लाइट का प्रोपगेशन है इस पॉइंट पर जो 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो ट्राइंगल ए बी सी मैंने यहाँ पे लिया है, इसमें ये एंगल ऑफ आई है, तो इसमें हम करेंगे साइन आई। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें देखिए ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है इस पर, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है AC। तो इसमें मैं लिखूंगा साइन थीटा, हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर इसमें है BC, ये मैं बता रहा हूं, ये BC। तो मैं इसको परपेंडिकुलर को मैं लिख दूंगा यहाँ पे BC अपॉन, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया इसमें? AC हो गया। तो मैंने लिख दिया BC बाई AC। किसकी वैल्यू आ गई है? साइन आई। अब मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, साइन आई इज इक्वल टू, देखिए BC जो है वो V1t है, तो मैंने इसको लिख दिया है V1t बाई AC। ये वैल्यू आ गई है साइन आई। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ACD, देन फ्रॉम ट्राइंगल ACD the value of sin R, similarly perpendicular upon hypotenuse, perpendicular is your, देखिए यहाँ पे this one is direction of propagation and this one is wave front, then it will be perpendicular। तो ये perpendicular आपका हो गया। इसमें आप ये बता देंगे कि ये आपका हो गया है, इस पे ये वेव फ्रंट है, ये वाला वेव फ्रंट CD, एंड दिस वन इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, बोथ आर परपेंडिकुलर। तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर AD, और इसमें ये हो गया आपका बेस और हाइपोटेन्यूज हो गया है AC। तो मैं इसको लिख दूंगा, ये देखिए ये आपका हो गया परपेंडिकुलर को हम लिखेंगे AD। तो ये हो गया AD बाई हाइपोटेन्यूज, इसमें हो गया AC, तो ये लिख दिया मैंने AC। तो साइन R इज इक्वल टू AD की वैल्यू, AD ये वाली है जिसकी वैल्यू है V2t, तो मैंने इसको लिख दिया V2t बाई AC। साइन R इज इक्वल टू V2t बाई AC। दिस वन इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, एंड वी वांट टू प्रूव μ21 इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R। ये हमें प्रूफ करना है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, from equation first and second, sin I by sin R, equation 1 divided by equation 2, sin I by sin R is equal to V1t by AC and V2t by AC. Now AC is cancelled out from AC, T is cancelled out from T, then V1 by V2. Then I can write sin I by sin R
is equal to V1 by V2. Now from the definition of refractive index, from the definition of refractive index, if the value of refractive index of first medium is given by mu1, then this mu1 will be equal to c by v1, where the speed of light in first medium is given by v1 and c is your speed of light in vacuum and mu1 is your refractive index of first material, first medium. ये डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है जिसको मैं आगे इसी चैप्टर में मैं आपको अच्छे से रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी केवल आपको इसका फॉर्मूला याद रखना। हमारा जो यहाँ पे पर्पज है वो केवल इस रूल को प्रूफ करना है। अब ये रिफ्रैक्शन का रूल जो है उसको हम डिटेल में रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। अभी हम रिफ्रैक्शन पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करके हम केवल रिफ्रैक्शन का जो रूल है उसको पकड़ेंगे और हाइगेन्स प्रिंसिपल को कंसीडर करते हुए उस रूल को प्रूफ करेंगे। उस रूल की ज्यादा डिटेल में हमें अभी नहीं जाना है, जो कि क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसे चेंज होता है, वो मटेरियल की कैसे क्या प्रॉपर्टी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यानी कि रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में जब रिफ्रैक्शन का जो टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें हम उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो अभी आपको ज्यादा उसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आपने रिफ्रैक्शन को अच्छे से स्टडी नहीं किया है। केवल आपने प्रीवियस जो क्लास थी आपकी 10th क्लास, उसमें एक छोटा सा टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपका सामने आया था और उसी से मैं आपको हल्का सा इसमें बता रहा हूँ। इसकी ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूँ कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है ना, और किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। केवल मैं ये बता रहा हूँ कि रिफ्रैक्शन में आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है। और अगर ये नहीं भी, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो आप केवल इस हाइगेन्स प्रिंसिपल तक, यहाँ तक अच्छे से इसको कर ले। ये जो 2-3 लाइनें हैं मैं जो ये प्रूफ कर रहा हूँ, ये आप रे ऑप्टिक्स में जो टॉपिक आएगा रिफ्रैक्शन, उसमें रिफ्रैक्शन को कंप्लीट पढ़ने के बाद में इसको आप बड़े आराम से कर लेंगे। तो इसलिए ज्यादा कंफ्यूज इसमें नहीं हो कि म्यू इक्वल टू सी बाई वी वन, ये तो बड़ा पहाड़ आ गया है। और ये देखिए ये हो गया है म्यू इक्वल टू सी बाई वी वन और म्यू टू इज इक्वल टू सी बाई वी टू, where mu2 is refractive index of second medium, c is speed of light and v2 is your speed of light in this medium. Now mu2 by mu1 is equal to c by v2 and c by v1. c से c कैंसिल आउट हो गया है और ये mu2 इसको mu2 by mu1 को mu21 बोल सकते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू v1 by v2। ये देखिए ये ऊपर चला जाएगा v1 by v2। तो इस v1 by v2 को मैं लिख सकता हूं mu21। अगर इसमें थोड़ा बहुत अगर आपको ऐसे लग रहा है जिसने 10th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इसको मैं आपको आराम से करवा दूंगा। आप इतना ज्यादा कंफ्यूज इसमें नहीं हो, केवल इसको प्रिंसिपल को समझ के चले। तो ये रूल है mu2 by mu1, जिसको हम लिख सकते हैं c by v2 अपॉन c by v1, और इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये v1 by v2 जो है इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं mu21। तो ये हो गया mu21 इज इक्वल टू sin i by sin r। ये स्नेल लॉ है, स्नेल लॉ है, जो रिफ्रैक्शन रूल है उसमें एक स्नेल लॉ है mu21 इज इक्वल टू sin i by sin r। तो हमने हाइगेन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, हाइगेन्स के अकॉर्डिंग लाइट के प्रोपोगेशन को कंसीडर करते हुए लाइट की एक प्रॉपर्टी जिसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं उसको हमने प्रूफ कर दिया है mu21 इज इक्वल टू sin i by sin r, जिसको स्नेल लॉ बोलते हैं। तो रिफ्रैक्शन रूल को हमने इसके अकॉर्डिंग लाइट के प्रोपोगेशन कंसीडर करते हुए प्रूफ कर दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि हाइगेन्स ने रिफ्रैक्शन रूल को भी प्रूफ कर दिया, रिफ्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है लाइट की उसको भी प्रूफ कर दिया। इससे पहले चैप्टर में हमने बताया था कि रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी जो है, लाइट की एक प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन, उसको भी हाइगेन्स ने प्रूफ कर दिया। और लाइट की एक प्रॉपर्टी जो हमने आज देखी है रिफ्रैक्शन, उसको भी हाइगेन्स ने क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। अब हम आगे दूसरा टॉपिक स्टडी करेंगे। तो इसके बारे में आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो, जिसको समझ में आता है वो कर ले, और जिसको हल्का सा अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में मैं कंप्लीट करा दूंगा।